Hello, my dear students, and welcome to the YouTube channel of Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. In this video, we are going to cover the full chapter number 7, Study of Gas Laws from your chemistry portion of class 9th ICSE. Now, this video is going to be a video of a long duration because we are going to cover the full chapter in one shot, in one video. This is a very important chapter that is going to come in your final exams of your class 9th, and therefore I'm here today to complete this full chapter with you people. Now you get ready with your notebook and your pencil, pen, whatever is required so that you can start writing the notes and start solving the questions that I will be discussing in this chapter. This chapter has a lot of numericals which I will be covering in this video. Let us start the chapter. So this chapter is about gases, right? The chapter says study of gas laws. So we are going to study about gases in this chapter. We should know one fact about the gases. What does it say? All gases show uniform behavior under similar conditions of temperature and pressure, irrespective of their chemical nature or color of odor. हम कोई सा भी गैस ले लें, whether it is oxygen gas, nitrogen gas, hydrogen sulfide gas, or any gas. If I take, if all the gases are under the same conditions of temperature and pressure, हमने अलग अलग गैसेस लिया, लेकिन सभी गैसेस को हमने सेम टेम्परेचर एंड अंडर द सेम प्रेशर में हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या देखा कि दीज गैसेस हैव ऑब्वियसली डिफरेंट केमिकल नेचर. ऑक्सीजन का अलग केमिकल नेचर है, नाइट्रोजन का अलग केमिकल नेचर है, हाइड्रोजन सल्फाइड का अलग केमिकल नेचर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अलग केमिकल नेचर है, कलर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अलग है, रेडिश ब्राउन कलर है. सो अलग अलग गैसेस के कलर्स भी अलग हो सकते हैं, स्मेल, ओडर भी अलग हो सकते हैं, chemical nature तो definitely different होते हैं. But in spite of them, if the gases are observed under the same temperature and same pressure, they will exhibit same kind of behavior, uniform behavior. When I say uniform behavior, what does it mean? It means they will have the same number of molecules, they will have the same volume, and all these stuff which we are going to cover up in this chapter, as well as you will also study some part in your class 10th in your next सेशन. तो यूनिफॉर्म बिहेवियर का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एक चीज होती है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दे शो सेम बिहेवियर. इट मींस quite a lot of things are there when I say uniform behavior. तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है? ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है. ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहला प्रॉपर्टी, composition of gases. Gases किस चीज के बने हुए हैं? Gases are made up of molecules and these molecules move in all possible directions. Gases में जानते ही हो, in your junior classes also you have studied gases molecules से बने हुए हैं, and molecules are not very very close to each other. Solids में क्या होता है? Molecules are closely packed. लेकिन gases में molecules are far apart from each other. That means there is some intermolecular spaces. There are intermolecular spaces, जगह है, intermolecular spaces है between each between the neighboring molecules. ठीक है? So the molecules can move randomly here and there. So in all possible directions the molecules move and at all possible speeds. Okay, zigzag motion होते रहता है. That means these molecules possess कौन सा energy? If the molecules are moving, motion में है, so these molecules possess which energy? Kinetic energy. So molecules में kinetic energy present होता है. This is first point. Second point क्या बोल रहा है? Gases have neither fixed shape nor fixed volume. Yes, gases का कोई fixed shape या fixed volume नहीं होता है. जैसे तुम कोई solid उठा लो, जैसे मान लो एक box ले लिया, solid box, तो इसका एक क्यूबॉइडल शेप है, एक फिक्स्ड शेप है क्यूबॉइड. या एक बॉल ले लो, सॉलिड बॉल, ये स्फेरिकल शेप है. तो एक सॉलिड का क्या है? एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है. एंड ऑब्वियसली एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि इसने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है. वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. तो एक फिक्स्ड स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो सॉलिड्स में फिक्स्ड स्पेस भी, फिक्स्ड इसका शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है. इफ आई टॉक अबाउट लिक्विड्स, सपोज एक ग्लास लिया तुमने, उसमें तुमने पानी डाला, लिक्विड, सो इट हैज दिस काइंड ऑफ शेप.
Now, if you transfer the same water to a bowl, then the shape of the water will change. It will take the shape of the bowl. If you put this same water in a jug, then this same water will take the shape of the jug. So water मतलब liquid का क्या होता है, they do not have fixed shape. Gases का भी fixed shape नहीं होता है, liquids का भी fixed shape नहीं होता है, but they have the fixed volume. Liquids have the fixed volume. The space occupied by in each case is same. तुमने जितना पानी लिया ग्लास में उतना ही पानी बाउल में है, उतना ही पानी जग में है. So the space occupied by the liquid is constant. So volume is fixed, but shape is not fixed. But in case of gases, neither the shape is fixed nor the volume is fixed. Why? If you take some amount of gas and you keep it in a container, closed, ekdam pura closed container, the entire space inside the container will be filled by that gas. And पूरा कंटेनर गैस से भर गया. So गैस का ये वॉल्यूम हो गया, ये शेप हो गया. The same amount of gas, if you transfer to a bigger box, closed box, bigger box, the same gas will fill up the entire container again. The molecules will go far away, far away, far away, and the entire space will be captured by the same amount of gas. तो mass of the gas is the same, लेकिन उसने जगह ज्यादा ले लिया, तो वॉल्यूम फिर बढ़ गया. The space occupied by the gas has increased. Obviously वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. फिर अगर ये सेम अमाउंट ऑफ गैस को तुम एक और बड़ा सा कंटेनर में ले लेते हो, बड़ा बॉक्स में ले लेते हो, तो अगेन द एंटायर बॉक्स विल बी फिल्ड बाय द सेम गैस. द मॉलिक्यूल्स विल अगेन मूव मोर फार अवे फ्रॉम ईच अदर and entire space inside this box will be filled by the same amount of gas. That means again the volume has changed again. So the space occupied by the gas is not fixed. Whenever we take whichever container we are taking, the gas is occupying the entire space available inside that container. That means gases do not have fixed volume. Shape bhi fixed nahi hai. You take the same amount of gas to a spherical container, then this gas will take the spherical shape. So gases have no fixed shape and no fixed volume. Next point, gases exert pressure in all directions. जैसे तुमने एक बॉक्स ले लिया, क्यूबॉइडल बॉक्स, इसके अंदर कोई भी गैस है, तो ये गैस क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के वॉल्स पर कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. और कहीं से भी अगर एक होल मिल जाए, इफ यू मेक अ होल इनसाइड द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, द गैस विल एस्केप थ्रू दिस होल. ये गैस यहां से निकल जाएगा. दैट मींस व्हाई द गैस इज ट्राइंग टू रश आउट, बिकॉज वो प्रेशर अप्लाई कर रहा था कंटिन्यूअसली इन ऑल डायरेक्शंस. हर डायरेक्शन में जो भी गैस अंदर में है वो कंटेनर के वॉल्स पर कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो. इफ यू टेक अ एम्प्टी सिरिंज, यू नो, जिससे इंजेक्शन देते हैं ना, एम्प्टी सिरिंज. ओके, यू मस्ट हैव सीन, अभी तुम लोग सब वैक्सीन भी ले रहे हो, ठीक है, ड्यू टू कोविड. हम लोगों ने, सीनियर्स ने तो वैक्सीन ले लिया है 18+ ने, लेकिन जो जूनियर जो 18 से बिलो है, अभी उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है. तो ये जो सिरिंज से वैक्सीन देते हैं, सपोज द नीडल ऑफ द सिरिंज इज रिमूव्ड एंड यू आर जस्ट टेकिंग द सिरिंज, द नीडल इज नॉट देयर, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, इस नोजल को क्लोज कर दो, प्लग कर दो किसी चीज से, उंगली से भी प्लग करके रख दो, एंड यू कैन पुश दिस पिस्टन इनसाइड. This contains air. इसके अंदर कुछ नहीं है, मान लो एयर है. You can push it and you can feel that you are compressing the air. That means गैस को तुम compress कर सकते हो easily. लेकिन क्या solids को हम easily compress कर सकते हैं? नहीं. ये जैसे मेरा पेन सॉलिड है, इसको क्या मैं प्रेस करके कंप्रेस कर रहा हूँ? नहीं कर पाता हूँ. हाँ, कुछ सॉलिड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पंज, रबर, but most of the solids which are rigid solids, we can't compress them. But gases are easily compressible. गैसेस आर इजीली एक्सपेंसिबल ऑल्सो. जिस तरह से हम उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसी तरह से इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं. आप गैसेस को जगह दे दो एक्सपैंड होने के लिए, गैसेस विल एक्सपैंड वेरी इजीली. ओके, द मॉलिक्यूल्स विल मूव फार अपार्ट एंड गैसेस विल एक्सपैंड वेरी इजीली. गैसेस हैव लो डेंसिटी. लो डेंसिटी मींस the number of molecules per unit volume is very less in case of gases. The number of molecules per unit volume is very less. जैसे हम एक सॉलिड और गैस का कंपैरिजन करते हैं. आई हैव टेकन अ सॉलिड क्यूब और अ क्यूबॉइड. द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, राइट? बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड्स में. तो अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, से दिस पार्ट इज यूनिट वॉल्यूम 1
सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स है? काफी सारे मॉलिक्यूल्स है इस रीजन में। लेकिन अगर हम सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेते हैं, एक क्यूब लिया, उसके अंदर गैसेस है, तो ऑब्वियसली गैसेस आर फार अपार्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। तो वो सेम ही अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को देखें तो उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आएंगे। सॉलिड्स में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है उसी रीजन में, लेकिन गैस में बहुत कम मॉलिक्यूल्स है उसी वॉल्यूम में। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यू कैन से मास पर यूनिट वॉल्यूम is very less in case of gases, so it shows low density. Gases show less density. Now gases have a natural tendency to mix with one another. दो gases को mix करने के लिए छोड़ दो, बहुत easily mix हो जाएंगे। जैसे for example you take a container, this container has say nitrogen gas, and you take another container, say this gas has chlorine gas, this container has chlorine gas, closed container से। लेकिन अब मान लो कि बीच में से तुम इनमें पाइप से कनेक्ट कर दिया, तुम लोगों ने क्या किया, एक पाइप से कनेक्शन कर दिया। नाउ नाइट्रोजन इज अलाउड टू फ्लो टू दैट पार्ट, क्लोरीन भी इधर जा सकता है, और बहुत इजीली दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। एंड कुछ देर के बाद व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट दी बोथ ऑफ द कंटेनर्स हैव नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ। इसमें भी नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन है एंड इसमें भी नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन है। दोनों में नाइट्रोजन क्लोरीन पूरा मिक्स होके सब सेम हो गया। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव डिफ्यूज्ड विद वन अनदर। सो इसी ये जो नेचुरल टेंडेंसी होती है मिक्स होने की, ये इसलिए होता है बिकॉज दी सबसे पहला ही पॉइंट में हमने कवर किया है कि मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड इन ऑल पॉसिबल स्पीड्स। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल सब मूव कर रहा है इधर उधर, एंड फाइनली ये मिक्स हो गया है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम लोग एक डिफाइन भी करेंगे प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट स्लाइड। This is what diffusion is. Gases diffuse very easily. Gases can be liquefied. आप gases को बहुत easily liquefy कर सकते हो। Have you heard of liquid oxygen? Yes, liquid oxygen, liquid nitrogen सुने होंगे। Generally oxygen is a gas. When you say oxygen, वो हमारे मन में क्या आता है? Gas. लेकिन हम gases को liquefy भी कर सकते हैं। We can obtain liquid carbon dioxide, liquid oxygen, liquid any kind of liquid nitrogen. तो गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। कैसे लिक्विफाई करेंगे? टेम्परेचर बहुत कम कर दो, प्रेशर हाई कर दो। तो गैसेस के टेम्परेचर कम कर दोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्लोज आ जाएंगे, और प्रेशर भी बढ़ा दोगे तो भी मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। एंड क्लोज आते 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 वो इतने क्लोज आ जाएंगे जैसे लिक्विड्स में जितना क्लोज होता है उतने क्लोज आ जाएंगे, एंड दे विल टर्न टू लिक्विड। तो गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ओके, so I hope you all are writing these things which are displayed on the screen. इसको लिखते जाओ, लिख भी लो। और एक चीज, मैं इस जो एंटायर जिस स्लाइड्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड्स को तुम डाउनलोड कर सकते हो। दिस विल बी अवेलेबल in through a link which will be provided in the description box of this video. मैं इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, तो ये पूरा स्लाइड जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये तुम्हें वहां मिल जाएगा। तो उसकी नोट्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो डिफ्यूजन वर्ड को हमने अभी अभी डिफाइन किया है, वो डिफ्यूजन का डेफिनेशन एक अच्छे लैंग्वेज में अब हम पढ़ते हैं। मैंने समझाया डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस केप्ट इन कांटेक्ट। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो गैसेस को मैंने मिक्स किया तो वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो दे शुड बी केप्ट इन कांटेक्ट, एंड हाउ दे विल मिक्स? बाय मॉलिक्यूलर मोशन। द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, तो वो मिक्स हो जाएगा। नाउ देयर इज अ टर्म दैट वी यूज्ड, अभी इसी जगह हमने यूज किया था, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, मैंने अभी भी बताया था प्रेशर धक्का दे रहा है उस कंटेनर के वॉल्स को। प्रेशर का मैथमेटिकल डेफिनेशन अब हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ाया है बच्चों को प्रेशर का डेफिनेशन, यू नो, यू आल्सो हैव स्टडीड। प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, दिस इज व्हाट प्रेशर इज, क्लास 8 में पढ़े होंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। Now, when I say pressure of a gas, this is the force exerted by the gas on unit area. बस same है. So the force exerted on unit area of the wall of the vessel, जो भी vessel में वो gas contained है, उस vessel के unit area में कितना force लग रहा है, उसे ही हम कहेंगे pressure of the gas.
इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं। प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट तुम लोगों ने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला चैप्टर में, ओके, 9th में ही पढ़े हो, पैस्कल होता है। सो प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स, पैस्कल। इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट्स होते हैं। mm ऑफ एच, ये प्रेशर होता है। सेंटीमीटर ऑफ एच, ये भी यूनिट होता है। ये सब प्रेशर्स के यूनिट्स हैं, ठीक है। एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। हमारे जो सर के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एयर है, that air is applying a pressure on us, we are under the atmospheric pressure at all times. So that pressure due to the atmosphere is known as atmospheric pressure. These words you have studied, atmospheric pressure, pressure ke units, you have studied it in the chapter atmospheric pressure, जो तुम्हारे first terminal में तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। Now we are moving to the next part. The average kinetic energy of a particle, which is a molecule, is directly proportional to its absolute temperature. ये एक important सा fact है। अब इसको समझते हैं। बहुत important fact है, एक important point है। क्या लिखा हुआ है? Average kinetic energy of a molecule. देखो, मैंने सबसे पहला point जो यहाँ discuss किया था, this point, क्या लिखा था, क्या बताया था? Gases are made up of molecules. And these molecules are in motion. These molecules constantly move in all possible directions and at all possible speeds. तो molecules motion में है, इसका मतलब molecules में कौन सा energy present है? कोई भी body जो motion में है उसमें कौन सा energy present होता है? Kinetic energy. Kinetic energy. अब बता रहे कि kinetic energy किस पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गर्म करेंगे हम, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मतलब स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, उतना ज्यादा मोशन आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज टेलिंग अस कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब, देखो टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल्स में जनरली मेजर करते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तुम लोग जानते हो टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं कॉमनली, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन वाला स्केल एसआई यूनिट वाला स्केल है, लेकिन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट भी बहुत कॉमन स्केल्स होते हैं। लेकिन जब मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड को यूज कर रहा हूं तो मैं एसआई यूनिट वाला स्केल की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ही होता है Kelvin scale. So we are not talking about degree Celsius scale and Fahrenheit scale. तो very specifically जब लिखा हुआ है absolute scale, absolute temperature, it means Kelvin temperature. तो Kelvin temperature में जब हम लेते हैं गैस का टेम्परेचर, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। आप टेम्परेचर को डिक्रीज करो, मतलब गैस को ठंडा करो, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट सा चीज समझने की है। मैंने अभी भी क्या बोला कि आप केल्विन टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको मैं बोल रहा हूं, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस को डिक्रीज करोगे, मतलब गैस को ठंडा करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा मतलब मॉलिक्यूलर मोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मन में एक बात क्लिक होना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी को हम डिक्रीज करते करते, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है करते करते क्या वो समय आ जाएगा कि गैस में कंप्लीटली मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाए, जीरो मॉलिक्यूलर मोशन हो जाए? क्योंकि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा पोजीशन क्या कभी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, एंड विच मीन्स मॉलिक्यूलर मोशन भी पूरी तरह से सीज हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन
एकदम बंद हो जाए, नो वाइब्रेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसा हो सकता है, थियोरिटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। ओके ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप कभी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन को एग्जैक्टली जीरो नहीं कर सकते। कोई भी अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें मोशन होगा ही, बहुत कम भी होगा लेकिन होगा ही। तो ये थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ जीरो हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली इट इज नेवर पॉसिबल। तो जिस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं जीरो केल्विन। 0 Kelvin. This is an imaginary temperature. This is not possible to achieve. You can never achieve 0 Kelvin temperature, because if you achieve this temperature, it is that temperature where molecular motion ceases completely. There is no molecular motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 Kelvin को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। 0 Kelvin का एक स्पेशल नाम है एब्सोल्यूट जीरो। ये वो टेम्परेचर है जहां मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली जीरो हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज हो जाता है। नाउ वी विल डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। ये जो 0 Kelvin है ये एब्सोल्यूट जीरो है। याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। तो एब्सोल्यूट जीरो को हमने कैसे डिफाइन किया? मैंने अभी भी समझाया। इट इज द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस, एंड दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, एंड इट सीज एंड ऑन द केल्विन स्केल इसे हम कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में लेते हैं, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इट इज इक्वल टू 0 Kelvin। अभी भी मैंने बताया, अगर उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। यू नो हाउ डू वी कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस, राइट? ये सब लोअर क्लासेस में पढ़े हो कि अगर हमारे पास केल्विन है, केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर को 273 से ऐड करते हैं। सो एंड देन वी ऑब्टेन द केल्विन टेम्परेचर। तो इसी से हमने यहाँ पे सेल्सियस वाला को ऑब्टेन किया। सेल्सियस टेम्परेचर में ऑब्टेन करना है तो केल्विन को हम माइनस कर देते हैं 273 से। तो हमारा केल्विन स्केल 0 Kelvin है, तो 0 - 273 गिव -273 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन्ड कि हमारा एब्सोल्यूट जीरो, जो केल्विन स्केल में 0 Kelvin होता है, सेल्सियस स्केल में कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑप्शन ए 0 Kelvin, ऑप्शन बी, ये आता है बोर्ड्स में, ऑप्शन बी 273 Kelvin, ऑप्शन सी -273 Kelvin, ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। और मान लो एक, अभी तो 4 ही ऑप्शंस आते हैं, हो सकता है कि एक ऐसा ऑप्शन भी आए 0 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब पॉसिबल ऑप्शंस में से कोई 4 ऑप्शंस वो दे सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कौन सा होगा, 0 Kelvin होगा या 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 Kelvin होगा या -273 Kelvin होगा, या 273 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, याद रखना 0 Kelvin इज द आंसर। और -273 अगर दिया हुआ है, -273 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 Kelvin होता है, या तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। You should be very careful about this. Moving to the, and this is a theoretical concept. This temperature is not practically achievable. Moving to the next slide. अब आते हैं हम इस चैप्टर के कोर में। ये चैप्टर का नाम ही है गैस लॉज। यहां हम 3 लॉज को पढ़ेंगे, 3 लॉज दैट गवर्न, that explain the behavior of the gases. The behavior of a gas under known conditions of pressure, temperature and volume is described by laws known as gas laws. ठीक है, हमें गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर पता है, क्या क्या पता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नोन, हमें ये पता है। और इन चीजों को अगर हमें पता है तो हम गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, गैस के बिहेवियर को जान सकते हैं। और जानने के लिए ही 3 तरह के लॉज से हम जान सकते हैं। 3 तरह के लॉज हैं जिनसे हम गैस के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। व्हाट आर दोज लॉज? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को मिक्स करके ये थर्ड वाला बनता है गैस इक्वेशन। मेन ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है, फिर इन दोनों को मिलाकर एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन बनता है गैस इक्वेशन। तो हम ये तीनों लॉज को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
एक चीज का ध्यान देना, हमने क्या बोला, बिहेवियर ऑफ द गैस को जानने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे टेम्परेचर का स्पेलिंग गलत है, RATURE होना चाहिए। तो एनीवे, तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द गैस। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द गैस। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो ये चीज जो मैंने अभी भी बताया, ये इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स। वो कौन कौन से 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स या 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं? वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम का डेफिनेशन ही होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। तो यहाँ पे ये तो सिंपल है, वॉल्यूम मतलब गैस ने कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया। ठीक है, कोई फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई वो करता नहीं है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करता है। अगर कंटेनर छोटा है तो वो उसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। अगर कंटेनर बड़ा सा कंटेनर है तो वो सेम अमाउंट ऑफ गैस बड़ा कंटेनर को पूरा फिल कर लेगा, तो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट्स तो बहुत सारे होते हैं, मैथ्स में पढ़े हो, फिजिक्स में भी पढ़ते आए हो। वॉल्यूम का SI यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन SI यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स यूज करते हैं हम लोग। प्रेशर को क्या बोलते हैं? प्रेशर का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक स्लाइड में पढ़ लिया है। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के पर यूनिट एरिया, कंटेनर के वॉल्स के पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है उसे प्रेशर बोलते हैं। इसका यूनिट्स भी जानते हो, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, ATM हो सकता है, फिर बहुत सारे जैसे mmHg हो सकता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg हो सकता है। दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। SI यूनिट पास्कल होता है। Temperature of a gas means how much hot the gas is, the degree of hotness or coldness of the gas. इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। बट व्हेन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही लें। प्लीज कीप दिस इन माइंड. We have to take the absolute temperature. That means it must be always in Kelvin. अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, you have to convert it to Kelvin for sure. Don't make this mistake. Kelvin में करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, देखो समझो। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, हमने एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया, फिक्स्ड मास ऑफ गैस ले लिया, एंड a change in one or more than one variable results in the change in the remaining variables. किसी भी एक चीज को हमने अगर चेंज कर दिया तो बाकी दोनों चीजें भी चेंज हो जाएंगी। अगर हमने गैस लिया एक गिवन मास का, उस मास का वॉल्यूम को मैंने चेंज कर दिया, उस गैस को हमने एक कंटेनर में रखा, तो मान लो मास है 10 ग्राम्स ऑफ गैस है, कोई भी गैस है 10 ग्राम्स ऑफ गैस, उसको हमने एक छोटा सा क्लोज्ड कंटेनर में रखा, तो इसका एक वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा है इस वॉल्स पर, और टेम्परेचर भी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में है। अगर हम ये सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ द गैस को एक बड़ा सा कंटेनर में ट्रांसफर कर दें, तो ये यही 10 ग्राम ऑफ गैस, मास चेंज नहीं होगा, 10 ग्राम ऑफ द गैस विल नाउ ऑक्यूपाई द एंटायर फुल कंटेनर। तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को हम यहाँ चेंज करते हैं, या तो प्रेशर को चेंज कर दो, टेम्परेचर को चेंज कर दो, वॉल्यूम को चेंज कर दो, तो दूसरे चीजों में भी, दूसरे वेरिएबल्स में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, वो दूसरे वेरिएबल्स भी इसमें चेंज हो जाएंगे। तुम टेम्परेचर को चेंज कर दो गैस का, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एक चीज को चेंज करने से दूसरे चीजें भी अफेक्टेड होंगी। So these are all interconnected, and this is what we are going to study in Boyle's law and Charles' law. How does one of the variables depend on the other variable, or how does one of the variables affect the other variable? This formula is the formula of how do we convert degree Celsius to Kelvin. डिग्री सेल्सियस में अगर हमारा दिया हुआ है टेम्परेचर, तो हम उसे केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? 273 से
ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर 23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसके साथ हम 273 ऐड कर देंगे तो 296 केल्विन हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए, और केल्विन को भी सेल्सियस में अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लॉ इस चैप्टर का, विच इज बॉयल्स लॉ। नाउ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर at constant temperature. Okay, now see what does this law say. क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस। हमने लिया एक ड्राई गैस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ गैस नहीं, ड्राई गैस। ड्राई गैस का मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं, इसमें कोई H2O नहीं है। वाटर अगर रहेगा तो फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हमने लिया अगर नाइट्रोजन तो प्योर नाइट्रोजन होना चाहिए, ड्राई नाइट्रोजन होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होने का मतलब है कि उसमें H2O भी एडेड है, वाटर भी है, तो फिर ये प्योर नाइट्रोजन नहीं है, इसका पूरा बिहेवियर ही गड़बड़ा जाएगा। So if I'm talking about nitrogen, it has to be pure dry nitrogen. If I'm talking about oxygen, it has to be dry oxygen, pure oxygen. तो हमने लेना है ड्राई गैस और गिवन मास, मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ हमने गैस लिया, उसकी वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? प्रेशर के साथ। प्रेशर के साथ, उस गैस के ऊपर हमने कितना प्रेशर डाला है उस प्रेशर के साथ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर होनी चाहिए कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल से इसको समझते हैं। तुम्हारे पास एक सिरिंज है, मान लेते हैं, जिससे हम वैक्सीन लेते हैं, सिरिंज है, सिरिंज का ये पिस्टन है, ठीक है। सपोज यू हैव प्लग्ड दिस नोजल, इसको तुमने पूरी तरह से प्लग्ड इन कर दिया, मतलब एकदम क्लॉगिंग कर दिया, कुछ भी चीजों से, कॉटन से या उंगली से इसको तुमने क्लॉगिंग बंद कर दिया, प्लग्ड कर दिया। नाउ दिस हैज एयर इन इट, एयर इज अ गैस, ठीक है, ये एयर है, अंदर में एयर है। अब तुम क्या करोगे? तुम इस एयर के ऊपर इस पिस्टन को पुश करो इनसाइड, प्रेशर पिस्टन को पुश करो। तो व्हेन यू पुश इट, you are increasing the pressure, pressure on the gas is increasing, इसलिए मैंने P लिखा और एक एरो को ऊपर बना दिया। तो प्रेशर को तुमने इंक्रीज किया, गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला। जैसे ज्यादा प्रेशर डाला ये गैस कंप्रेस हो जाएगा, है ना, पिस्टन विल कम हियर। नाउ यहाँ पे पिस्टन आ गया, तुमने इसको पुश किया तो अब गैस कंप्रेस हो गया, the space occupied by the gas has decreased now, that means the volume has decreased। तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर को घटाओगे, द मोमेंट यू रिलीज द पिस्टन अप, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, द गैस विल एक्सपैंड। प्रेशर को डिक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यही तो बॉयल्स लॉ ने कहा, कितना सिंपल सा चीज है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। क्या तुमने गैस का टेम्परेचर कहीं चेंज किया? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट था। सो टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। तो यही तो बॉयल्स लॉ कहता है कि आपने एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया, ये जो अंदर में एयर था, इस एयर का मास भी तुमने चेंज नहीं किया। जो सिरिंज के अंदर जो एयर पहले था, जितना मास का एयर था, कंप्रेस करने के बाद भी उतना ही मास ऑफ एयर है। सो यू हैव गिवन मास ऑफ एयर और एनी ड्राई गैस, एंड the volume is inversely proportional to the pressure, मतलब pressure बढ़ेगा तो volume घटेगा, volume घटेगा तो pressure बढ़ेगा। The one of the quantity will increase, the other quantity will decrease. This is what inversely proportional means. This happened at constant temperature. यही तो बॉयल्स लॉ ने कहा। कितना सिंपल है, हम इसको अपने घर में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो बॉयल्स लॉ कहता है वो बहुत ही सही बात है कि प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। and this is happening at a constant temperature and for a fixed mass of gas. This is important to note that the mass is fixed, temperature is also constant. Then this is when we apply the Boyle's law. For Boyle's law to be applied in a particular concept, we have to be sure that the mass of the gas should be fixed. Mass should not change, as well as the temperature should be fixed. That also should not change. अच्छा, अब बॉयल्स लॉ का जो इक्वेशन है, दिस इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2।
what is the P1 V1 equals to P2 V2, and how did we actually come to this equation? How is that? How is this equation derived? Acha, chalo. P1 is actually the initial pressure of the gas, and V1 is the initial volume occupied by the gas. जैसे सिरिंज तुमने लिया, सिरिंज को कंप्रेस करने के पहले, मतलब तुमने ये सिरिंज लिया, अब मैं इस डायग्राम को फिर से थोड़ा क्लीन कर लेता हूं. तुमने ये सिरिंज लिया और सिरिंज को अभी पुश नहीं किया, अभी सिरिंज को जस्ट प्लग्ड इन करके छोड़ दिया, लेकिन कंप्रेस नहीं किया. तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है गैस, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे V1, मींस इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. और जो भी प्रेशर इस पिस्टन ने अभी अप्लाई करके रखा हुआ है, इनिशियली जो प्रेशर इस गैस के ऊपर अप्लाइड है, उस प्रेशर को हम बोल रहे हैं P1. So initial pressure on the gas and the initial volume of the gas is known as P1 and V1 respectively, or V1 and P1 respectively. लेकिन अब जब तुमने गैस को कंप्रेस कर दिया, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, the new pressure is P2, and when you have compressed it, the volume of the gas has decreased, so the new volume is V2. So this is what Boyle's law says, कि आप initial pressure and initial volume का product should be equal to the new pressure and new volume ka product. The temperature is constant, obviously, that is obviously known, the temperature constant honi chahiye. This is what Boyle's law says. Now, how do we, explain it through a derivation? This derivation generally is not asked in your exam, लेकिन इस derivation को हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत easy derivation होता है. ठीक है, suppose initial pressure on the gas is P1 and the initial volume of the gas is V2. Initial volume of the gas is V2. Okay? V1. So initial pressure is P1 and initial volume is V1. तो ये कहता है कि ये जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब P1 और V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब 1 अपॉन किसके साथ? प्रेशर के साथ, P1. दिस इज हाउ वी राइट मैथमेटिकली. V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन P1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो 1 अपॉन नहीं लिखते. अब इस P1 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो हमारा क्या हो रहा है? V1 इंटू P1. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करने के लिए, मतलब इक्वल टू साइन में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट जरूरत है, एंड दैट कांस्टेंट इज K. सो K इज अ कांस्टेंट. लेट अस से K इज अ कांस्टेंट. तो हमें क्या मिल गया? V1 इंटू P1 इज अ कांस्टेंट. दिस इज अ कांस्टेंट. नाउ अभी हमने प्रेशर चेंज कर दिया, न्यू प्रेशर, या मान लो फाइनल प्रेशर बोल रहा हूं. फाइनल प्रेशर ऑन द गैस is P2 and the final volume of the gas ने नया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, is V2. सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2. इधर हम सेम तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू K अपॉन P2. हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वल टू किया, तो एक कांस्टेंट डाल दिया K. अब P2 को इधर ला देंगे तो V2 इंटू P2 इज इक्वल टू K विच इज कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों ही कांस्टेंट है, K के इक्वल है. दैट मींस P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2. फाइनली हम बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो हमने ऐसे डिराइव कर लिया इस बॉयल्स लॉ का इक्वेशन को. अब इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, अब हम लोग इसको करने वाले हैं. याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, P1 किसको बोल रहा हूं? इनिशियल प्रेशर को. V1 किसको बोल रहा हूं? इनिशियल वॉल्यूम को. P2 किसको बोल रहा हूं? न्यू प्रेशर को, फाइनल प्रेशर को. V2 किसको बोल रहा हूं? न्यू वॉल्यूम को, फाइनल वॉल्यूम को. लेट अस नाउ स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल्स.
अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले बॉयल्स लॉ को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ को डिफाइन करना एक और तरीके से। यू सी, कमिंग टू द प्रीवियस स्लाइड, यहां पर अभी अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड V1, ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है। दोनों केसेस में देखा, यहाँ पे भी P1 और V1 का जो प्रोडक्ट था, P2 और V2 का, वो भी कांस्टेंट था। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ये भी एक तरीका है बॉयल्स लॉ को डिफाइन करने का। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, यानी V एंड P ऑफ अ गिवन मास। फिर से ये इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो प्रोडक्ट है P और V का प्रोडक्ट है, PV का, या V और P बोलो या P और V बोलो, एक ही बात है, ये एक कांस्टेंट होता है। दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये कभी गलत नहीं होता है, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल से हमें ऐसा लगेगा कि मानो बॉयल्स लॉ वायोलेट हो रहा है। जैसे when air is blown into a balloon, volume and pressure inside the balloon increase. तुम बैलून लिया, बैलून फुला रहे हो। Suppose you have taken a balloon and you are inflating the balloon. जैसे जैसे तुम अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, बैलून बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, गैस या अंदर में प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। लेकिन बॉयल्स लॉ ने तो कहा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तो बिल्कुल अलग हो रहा है। If pressure is increasing, volume is also increasing, volume of the gas is increasing. So is it a violation of Boyle's law? Is it a violation of Boyle's law? क्या Boyle's law violated है? ना जी ना। Can you think, all of you, you have to think, यहाँ पे ये Boyle's law का violation है ही नहीं। क्यों नहीं है? लग तो रहा violation है। देखो, Boyle's law ने कहा था given mass, fixed mass होनी चाहिए। तुम जब एयर ब्लो कर रहे हो बैलून में, फुला रहे हो, यू आर गिविंग न्यू एयर इनटू द बैलून। हर एक सेकंड में तुम यू आर ब्लोइंग एयर इनटू द बैलून। तो बैलून के अंदर जो एयर है उसका मास इंक्रीज हो रहा है। It is not for a fixed mass you are talking about. When you are blowing air into the balloon, the mass of the gas is not fixed, and hence Boyle's law cannot be applied in this case. So Boyle's law is only applied if the mass of the gas is fixed. So लिखो, no, Boyle's law is not violated here. Reason लिखो, Boyle's law is valid only for a fixed mass of a gas. When we blow air into a balloon, the mass of the gas inside the balloon changes. इसीलिए हम बॉयल्स लॉ यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकते। This is a very important question that comes. All right. Now we discuss the next question, which is a numerical question, my dear students. A gas occupies 800 centimeter cube under 760 mm Hg. क्या लिखा हुआ है? कोई गैस है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया under 760 mm of Hg. Now from the units you have to identify what is given. सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है और ये इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है कि गैस ने इतना वॉल्यूम इनिशियली ऑक्यूपाई किया। कितने प्रेशर में? mmHg प्रेशर का यूनिट होता है, सो दिस इज प्रेशर, और ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। दैट मींस हमें क्या क्या गिवन है? इनिशियल वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर
760 mm of Hg, ये V1 और P1 दिया हुआ है. Find under what pressure the gas will occupy 380 centimeter cube. अब हमें निकालना है what pressure. अब नया क्या प्रेशर हो जाएगा, मींस P2 क्या हो जाएगा, नया प्रेशर क्या होगा when the gas will occupy 380 centimeter cube. अब नया वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इस बार, 380 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट से हमें पता किया कि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है. तो हमें P2 निकालना है, V2 दिया हुआ है. टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑब्वियसली इस टर्म को हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 की बात है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे. तो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, क्या इक्वेशन बोलता है, P1 V1 is equal to P2 V2. दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ इक्वेशन इज. ठीक है. नाउ हियर P1 के जगह P1 का वैल्यू लिखो. P1 का वैल्यू 760, V1 का वैल्यू 800, P2 का वैल्यू नहीं पता, निकालना है. V2 का वैल्यू 380. इसको सॉल्व करो, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है. 760 into 800 divided by 380. Now when you solve this, you will get the answer. So you must have solved it and you have got 1600. Now what unit we will write? यहाँ पे जो यूनिट है वही यूनिट. यहाँ पे यूनिट क्या है, P1 का mm of Hg. तो यहाँ पे भी 1600 का भी mm of Hg ही यूनिट होगा. This is the new pressure. This is the answer. Simple. Moving to the next question. A gas occupies 600 centimeter cube under a pressure of 700 mm Hg. Find under what pressure the volume of the gas will be reduced by 20% of its original volume, the temperature remaining constant throughout. यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि temperature constant throughout है. अब देखो क्या क्या given है, बहुत simple. Gas occupies 600 centimeter cube. So this is the initial volume, V1, 600 centimeter cube. Under pressure of 700 mm Hg. So ये कितना initial pressure है, P1 कितना है, 700 mm of Hg. Find under what pressure, फिर हमें P2 निकालनी है, new pressure. कितना pressure? The volume of the gas will be reduced by 20% of its original volume. हमारा new volume क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से 20% डिक्रीज हो जाएगा. तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 600. वहां से सब्ट्रैक्ट करो कितना, 20% ऑफ 600. इसको सॉल्व करो. 25 are 100 and 5 ones are 5, 5 2s are 10, 120. 600 minus 120, 480 centimeter cube. So this is the new volume. हमने ओरिजिनल वॉल्यूम का 20% डिक्रीज कर दिया. अब हमें सिंपल सा यहाँ पे बॉयल्स लॉ को यूज करना है. यूजिंग बॉयल्स लॉ कितना इजी है, यूजिंग बॉयल्स लॉ सेम इजी इक्वेशन. P1 V1 is equal to P2 V2. P1 का वैल्यू 700, V1 का 600, P2 का नहीं पता लेकिन अभी पता चल जाएगा सॉल्व करने के बाद. V2 का 480. तो P2 is 700 into 600 divided by 480, and when you solve this you'll get the answer 875. यहाँ पे भी यूनिट है प्रेशर, P1 का mmHg, so P2 का भी mmHg. आंसर हो जाएगा. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two cylinders, both containing carbon dioxide, are connected by a tube fitted with a tap. There are two cylinders, okay? Just see the diagram. This is one cylinder. This is another cylinder. All right. They both contain carbon dioxide. This cylinder A, it also has carbon dioxide filled in it. The another cylinder B also has carbon dioxide filled in it. Now they are connected by a tube fitted with a tap. So there is a tube that connects, both of these cylinders, and there is a tap in the middle. There is a tap in the middle. Now, if I close this tap, then
there is no contact between the two cylinders. That means no carbon dioxide from cylinder A can move to B, and similarly from B also no carbon dioxide will move to A if I close this tap. But if I keep this tap open, then what will happen? Carbon dioxide from tap A can move to tap B, from cylinder A will move to cylinder B, and carbon dioxide from cylinder B can also move to cylinder A. In other words, diffusion will occur. So there's a tap which will control the movement of the gases from one container to the another container. Now, the capacity of one cylinder is 4 decimeter cube. So this is the volume of, say, the first cylinder, 4 decimeter cube. And the other one is 1 decimeter cube. The volume of the another cylinder is 1 decimeter cube. Okay. So you see, this is a different question. This is something different from the previous questions that we did. Here we have 2 cylinders. We have to take individual cylinders one at a time, and we have to solve like that. The pressure in the first cylinder is 560 mmHg. ये जो first cylinder है, इसका pressure है 560 mm of Hg, and that of the second is 1000 mm of Hg. इसका 1000 mm of Hg है, ये दिया हुआ है. Now, what will be the final pressure in either cylinders? दोनों cylinders मिलकर final pressure क्या होगा? On opening the taps, यहाँ पे टैप है, not taps. On opening the tap, आप इस टैप को जब ओपन कर दोगे तो फाइनल प्रेशर इन द सिलेंडर्स क्या होगा? Now you see, we have to think in a different way here. We have to individually think of the cylinders. Let us say for the first cylinder. सोचो, फर्स्ट सिलेंडर का इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, फिर इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है 560 mmHg. लेकिन जब तुम टैप को उसके बाद ओपन कर दिया, तुमने टैप ओपन कर दिया, then this cylinder A and B are in contact. There is a flow of gases from A to B and B to A, and now they are not separate after you have opened it. So what is the new case? When you have opened the tap, the new volume will be 4 plus 1. 1 किसका? सेकेंड वाले सिलेंडर का 1 डेसीमीटर क्यूब है, पहले वाले का 4 है. जब तुमने टैप ओपन कर दिया तो गैसेस सब मिक्स हो जाएंगे, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी 4 plus 1. इसका 4, उसका 1 मिलकर 5 decimeter cube will be the new volume of the gas. Now what is the final pressure that we will find out? तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं फॉर फर्स्ट सिलेंडर, मैं सबसे पहले वाले सिलेंडर की बात करूंगा, फॉर द फर्स्ट सिलेंडर. ठीक है, तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? P1 प्रेशर दिया हुआ है 560 mm of Hg. Also this 4 decimeter cube volume is also given, 4 decimeter cube. साथ ही साथ ये भी पता है टैप खुलने के बाद दोनों एक साथ हो जाएगा. So final volume V2 will be what? 4 plus 1, which is 5 decimeter cube. Final pressure P2 in the first cylinder हमें निकाल लेनी है using Boyle's law equation. So using Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. We will put the values. 560 into V1 का वैल्यू 4 है is equal to P2 निकालना है, V2 5 है. So हमारा P2 हो जाएगा 560 into 4 divided by 5, which will be 448 mm of Hg. तो ये हमारा प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर इन द फर्स्ट सिलेंडर निकल गया. Similarly, we will solve for the second cylinder now. So second cylinder का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे. For the second cylinder की मैं बात करूंगा. इसमें क्या दिया हुआ है? P1 का वैल्यू
you see it is given 1000 mmHg, 1000 mmHg, ये सेकेंड वाले सिलेंडर का इनिशियल प्रेशर है। साथ ही साथ इसका V1 भी दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब जब मैंने टैप ओपन कर दिया तो न्यू वॉल्यूम विल बी सेम 4 + 1 सेम 5 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर इसका न्यू प्रेशर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग द बॉयल्स इक्वेशन। सो सेम चीज यहाँ करेंगे यूजिंग बॉयल्स लॉ। P1 V1 is equal to P2 V2। वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे इन द सेम वे एज वी डिड अर्लियर। 1 के प्लेस पर 1000, V1 के प्लेस पर 1, P2 के प्लेस पर हमें नहीं पता उसका वैल्यू, वी विल राइट P2 एंड V2 के प्लेस पर 5। तो ऑब्वियसली ये 200 से कट जाएगा। सो P2 विल बी 200 mm of Hg। नाउ दिस P2 जो पहले वाला हमारा P2, दिस इज द प्रेशर, फाइनल प्रेशर इन कंटेनर A और फर्स्ट कंटेनर, एंड ये जो P2 निकला ये सेकंड वाले कंटेनर का प्रेशर है। सो टोटल प्रेशर यही ना हमें निकालना है, फाइनल प्रेशर वही टोटल प्रेशर in either cylinders, what will it be? 448 plus 200 mm of Hg. So 648 mm of Hg. This is the final answer that we have got. Very simple, but this question was a bit different from the other questions. Okay. 648 mmHg. Now let us move to the next question. The volume of a given mass of a gas with some pieces of marble in a container at 760 mmHg is 100 ml. Now in this question, you will see that this is not only the gas which is present, but also some pieces of marble which is present along with the gas. क्या लिखा हुआ है? Gas with some pieces of marble in a container, and you have to be very careful over here. तो हमारा मान लो ये कंटेनर है, say this is the container which contains the gas. तो क्या लिखा हुआ है? Volume of a given mass of gas, इसके अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम with some marbles present in it. तो इसके साथ साथ यहाँ कुछ मार्बल्स भी है, कुछ मार्बल्स भी है। मार्बल्स का वॉल्यूम मुझे नहीं पता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम, जो भी गैस इसके अंदर है वो गैस का वॉल्यूम प्लस मार्बल का वॉल्यूम दोनों मिलके कितना वॉल्यूम है? 100 ml है, ये दिया हुआ है। नाउ ये गलती मत करना कि ये ml, ये 100 ml जो दिया हुआ है, दिस इज नॉट योर V1। ये इस क्वेश्चन का इनिशियल वॉल्यूम V1 नहीं है जिसको हम बॉयल्स लॉ में यूज करेंगे, क्योंकि जब हम V1 लेते हैं वो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस अलोन होता है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है। लेकिन यहां पर ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस प्लस मार्बल, मार्बल का भी वॉल्यूम इसमें इंक्लूडेड है। सो दिस इज समथिंग वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज गिवन 760 mmHg। तो ये P1 का वैल्यू दिया हुआ इनिशियल प्रेशर। अच्छा, अब आगे बोला जा रहा है इफ द प्रेशर इज चेंज टू 1000 mmHg। तो हमने अब न्यू प्रेशर डाला, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑन द गैस? It is 1000 mm of Hg. So this is the P2. P2 is given in the question. Now the new volume is 80 ml. ये नया वॉल्यूम दिया हुआ है। किसका नया वॉल्यूम है? गैस प्लस मार्बल। इस बार भी ये 80 ml सिर्फ गैस का वॉल्यूम नहीं है। So this is not your V2. इसको भी सिमिलरली जैसे पिछले वाले 100 ml को तुमने V1 नहीं लिया था, उसी तरह से इस 80 ml को V2 मत लेना, because this includes the marble का volume also. Now we have to find out what? Find the volume occupied by the marble pieces. Temperature is constant. तो हमें वही मार्बल का वॉल्यूम निकालना है कि कितना मार्बल है भैया, and we have to find out the मार्बल का वॉल्यूम. Write down the solution. So let the volume ऑफ द मार्बल, मान लेते हैं कि सिर्फ मार्बल का वॉल्यूम भी x सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
ml भी ले सकते हैं, x ml, लेकिन जनरली हम सॉलिड्स का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में मेजर नहीं करते। सॉलिड्स का वॉल्यूम हम जनरली सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वैसे मेजर करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे x मिलीलीटर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है x सेंटीमीटर क्यूब। एक रिलेशन तुम्हें अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है, ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर P1 इज 760 mm of Hg and this 100 ml जो इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल प्लस गैस। सो हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस अलोन कितना हो जाएगा, ये जो 100 ml है ये टोटल वॉल्यूम है ना, इसमें से 100 ml का मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो 100 ml इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है किसका वॉल्यूम, मार्बल का वॉल्यूम। तो 100 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस अलोन। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया x को, अब ये 100 माइनस x सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस है। डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ है इफ द प्रेशर इज चेंज टू 1000 mmHg। सो हमारा गैस का न्यू प्रेशर क्या है, 1000 mm of Hg and the new volume is 80 ml. Now this new volume is also the volume of the marble added to it. So इसमें भी हमें 80 ml मतलब 80 सेंटीमीटर क्यूब से x सेंटीमीटर क्यूब मार्बल का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब P1 V1 P2 V2 हमारा आ गया, सिंपली हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बॉयल्स लॉ, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ which says P1 V1 is equal to P2 V2 एंड वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, x का वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। P1 का 760, V1 का 100 माइनस x, P2 का 1000 एंड हमारा V2 इज 80 माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 760 00 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 760x इज इक्वल टू 1000 into 80 is 80000, 8 और 4 0, 80,000 माइनस 1000x। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है सॉल्व। तो हमारा हो जाएगा 80,000 माइनस 76,000, 4000 हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 माइनस 760 is 240x. So x is equal to 400,000 divided by 240 which is 16.6 मिलीलीटर्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो क्योंकि हमने यहाँ सॉलिड का निकाला। तो therefore the volume of the marble is 16.6 centimeter cube. This is the answer. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दे, क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़े और समझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है इस चैप्टर में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, जैसे ही ये वर्ड देख रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्लिक होना चाहिए माइंड में कि बॉयल्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, 400 सेंटीमीटर क्यूब at a pressure of 760 mm of Hg. So this is your initial pressure of the gas given. If the pressure of the gas is increased by 25%, so the new pressure of the gas is what? पुराने वाले प्रेशर का 25% बढ़ गया है। So पुराना वाला प्रेशर था 760 मींस P1, so plus 25% of 760. So 25 fours are 100. So इसको सॉल्व करो, 760 डिवाइडेड बाई 4, 760 प्लस ये कट के हो गया 190, 190 हो गया and this is 950 mm of Hg. So ये हो गया। Now find the new volume. We have to calculate V2, new volume हमें निकालना है।
बिल्कुल बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे, P1 V1 का कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो कोई टेंशन नहीं है. यूजिंग बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is 760, V1 is 400, is equal to P2 is 950 into V2 we have to calculate. So here we will bring all the things on this side. 760 into 400 divided by 950, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब. How did we know it is centimeter cube? Because V1 का unit centimeter cube था, so this also will be in centimeter cube. And this is the final answer. Let us move to the next question. A vessel of capacity 600 centimeter cube contains hydrogen gas at a pressure of 304 centimeter Hg. तो ये वेसल का कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है. वेसल का वॉल्यूम का मतलब ही है गैस का वॉल्यूम, क्योंकि गैस पूरा वेसल को ऑक्यूपाई कर लेता है. सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन, V1 इज गिवन 600 सेंटीमीटर क्यूब, contains hydrogen gas at a pressure of, so P1 का वैल्यू दिया हुआ है 304 centimeter of Hg. What will be the pressure of hydrogen gas? अभी हमें दूसरा प्रेशर निकालना है, न्यू प्रेशर निकालना है. When the pressure vessel is connected to another vessel of 300 centimeter cube capacity. Now be very careful. Caution. You have to be very careful in this question. Here, if you read the question ऊपर से superficially, तुम्हें लगेगा कि this 300 centimeter cube is V2. तुम कर दोगे 300, new volume is 300 centimeter cube, which is wrong, and you will get a wrong answer. There are a lot of students who make this mistake because question को ठीक से पढ़ा नहीं है उसने. Question क्या कहता है? When the vessel is connected to another vessel of 300 centimeter cube. ये है एक वेसल जिसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब, उसके साथ हमने इस 600 सेंटीमीटर क्यूब के वेसल को कनेक्ट किया. Whenever there is a word connected, you have to be very careful. यानी हमारा एक कंटेनर था जिस कंटेनर का वॉल्यूम था 600 सेंटीमीटर क्यूब. पहले इसको तो ये इंडिपेंडेंट अकेला था 600 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए हमने V1 लिख लिया 600 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन फिर इसको कनेक्ट किया गया माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कनेक्ट किया गया किसके साथ? एक दूसरे कंटेनर के साथ जिसकी वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब है. तो जब ये कनेक्ट हो गया तो ये फिर अकेला सिंगल नहीं रहा, they together become one container and the volume therefore will be added. So you have to be very careful that the new volume is not 300 centimeter cube, but it is 300 centimeter cube plus 600 centimeter cube, which is 900 centimeter cube. And here you have to be very, very careful. I hope you have understood. So whenever you see a word like this, that the vessel is connected to another vessel, connected, so you have to understand कि दोनों के volumes को हमें add करना है. Now the remaining part is very, very simple. So P1 V1 is equal to P2 V2 करेंगे. 304 into 600 is equal to P2 का वैल्यू निकालना है, V2 is 900. So ये हमारा हो जाएगा P2 is equal to 304 into 600 divided by 900. And इसको जब सॉल्व करेंगे you will have 202.6666 ऐसे चलते जाएगा. So that we can write 67. यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि P1 का भी यूनिट सेंटीमीटर ऑफ Hg था. So P2 का भी यूनिट सेंटीमीटर ऑफ Hg हम लिखेंगे. So this question is simple except for this part where you have to be careful. Otherwise, this is very easy question. So these are the things where you have to be very attentive and very careful. And now we are going to start the next law, Charles law. In the previous law, Boyle's law, जिसको हमने किया, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था, है ना? बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट में हम जाते हैं. कहां हमने लिखा था? ये
बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट में जाते हैं, क्या बोलता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को बताता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, नेम द लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, तुम बोलोगे कौन सा लॉ, ये है बॉयल्स लॉ। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर रिलेशनशिप को बॉयल्स लॉ बताता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लॉ विच इज चार्ल्स जी का लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, दिस इज, इक्वेशन से पता चल रहा है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो मैं अगर तुमसे पूछता हूं या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द लॉ विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, कौन सा लॉ है, तुम बोलोगे चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ गिव्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ही इजी है। तुम किसी भी चीज को गर्म करोगे उसकी वॉल्यूम बढ़ती है ना, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तुम लोग पढ़े हो। किसी भी चीज को गर्म करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये गैस में होता, गैस में भी होगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ इज टेलिंग। क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, मतलब मास फिक्स्ड है, हमने एक गिवन फिक्स्ड मास का गैस लिया, ऑब्वियसली ड्राई गैस होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उस गैस की वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ, केल्विन टेम्परेचर के साथ। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ऐसा आएगा। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। अब इसका डेरिवेशन कहां से आया, डेरिवेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी V1 मान लो इनिशियल वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल टेम्परेचर के। सो लेट, इसका डेरिवेशन में कर रहा हूं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस बी V1 at initial temperature, T1. According to Charles law, V1 is directly proportional to T1. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम अगर इक्वल टू साइन लाएंगे तो वी नीड अ कांस्टेंट, सो V1 इज इक्वल टू K इंटू T1। दिस इज इक्वेशन 1, या रादर एक मैं इक्वेशन इसको T1 को इधर ले आता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन को और फर्दर मॉडिफाई कर देता हूं। सो ये T1 नीचे आ गया, इज इक्वल टू K। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, लेट द फाइनल वॉल्यूम of the gas be V2 at final temperature, अभी नया टेम्परेचर क्या है, T2। तो लॉ वही कहता है कि V2 is directly proportional to T2। सेम चीज करेंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे, इक्वल टू लगा देंगे, एंड K will be equal to V2 upon T2, V2 upon T2 is equal to K। This is equation 2। Now, on comparing equation 1 with equation 2, both of these equations are equal to K, and therefore we can say V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. This is what Charles law is telling. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Pressure remains constant in this case. Pressure remains constant. Be very careful. Let us proceed with some questions now. बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, ये गैस है, गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इज टेकन एट 27.3 केल्विन। ये टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन, V1 is given 120 centimeter cube, and initial temperature T1 is given
27.3 केल्विन। अब देखो इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ बताता है। सो इमीडिएटली इट शुड क्लिक इन योर माइंड कि अगर टेम्परेचर वॉल्यूम की बात की जा रही है और क्वेश्चन में ये भी बाद में कहा गया है प्रेशर इज कांस्टेंट, तो तुम्हें तुरंत समझ आना है कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन। Now, the temperature is then raised to 0 degree Celsius. अभी न्यू टेम्परेचर कितना हो गया है? 0 degree Celsius. Now, be very careful. I have also told this earlier in this video कि हमें हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अगर ये टेम्परेचर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहता तो भी हमें उसको केल्विन में ही करना पड़ता चेंज। We have to compulsorily solve the temperatures in Kelvin. अगर सेल्सियस दिया हुआ है कहीं पे भी तुम्हें उसे केल्विन में करना ही पड़ेगा, because these laws are made in accordance to the Kelvin temperature, Kelvin scale. तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे हम चेंज करते हैं केल्विन में? इसे 273 से ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 273 इज 273 केल्विन, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस? मींस न्यू वॉल्यूम V2 है। क्या है? अब ऑब्वियसली यूजिंग चार्ल्स लॉ, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 is 120, T1 is 27.3, V2 is to be calculated divided by 273. Now this is cross multiply करेंगे, 120 into 273 divided by 27.3 is equal to V2. ठीक है। Now when you solve this, V2 will be equal to 1200. Obviously यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि V1 का भी यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब. So new volume of the gas is 1200 centimeter cube. So you have got this. Very simple. Next question. At what temperature will 500 centimeter cube of a gas measured at 20 degrees Celsius occupy half its volume? तो क्या बोल रहा है? At what temperature? हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर में 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, तो V1 दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस विच इज मेजर्ड, कौन से टेम्परेचर पे मेजर किया गया है उसको? 20 डिग्री सेल्सियस पे. सो T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैंने जैसे ही कहा था पिछले क्वेश्चन में कि वी हैव टू डेफिनेटली कन्वर्ट इट टू केल्विन स्केल. सो 20 प्लस 273 केल्विन करो, सो 293 केल्विन is your initial temperature. So ये जो 500 centimeter cube of the gas is measured at 20 degree Celsius. अब क्या बोल रहा है? Occupy half its volume. जो पहले वॉल्यूम था उसका अब हाफ हो गया. So what is your new volume? 500 था, उसका हाफ कर दो, 250 centimeter cube. Pressure is constant. So again you are very sure that if pressure is constant, this is definitely Charles law का equation. अब बोला ही है what temperature, you have to calculate the new temperature T2. So using Charles law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So 500 upon 293 is equal to 250 upon T2. So T2 is equal to 250 into 293 divided by 500. And here 0 कट जाएगा, 5 5s are 25, 5 10s are 50. इस 10 को नीचे डिस्टर्ब मत करो, सिंपली 293 into 5 करो, ऊपर में 9 5 3s are 15, 46 14, 1465 डिवाइडेड बाय 10. तो इसको डेसिमल में एक डेसिमल आगे आ जाएगा 146.5. लेकिन ये टेम्परेचर किस में आएगा? केल्विन में, ऑब्वियसली. अब you can leave your answer here to 146.5 Kelvin. Also what you can do, which is better to do, कि जिस यूनिट में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 20 डिग्री सेल्सियस, उस यूनिट में आंसर को वापस से कन्वर्ट कर दो. जैसे 20 डिग्री सेल्सियस था तो हमारा T2 क्या हो जाएगा? 146.5 माइनस 273 केल्विन. जब हम सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो वी हैव टू ऐड 273.
Otherwise, when we are changing from Kelvin to degree Celsius, the degree Celsius scale minus 273 करेंगे. So that will give me minus 126.5 degree Celsius. This will be in degree Celsius. Okay, degree Celsius. This is your answer. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. Now एक बात बच्चे पूछते हैं, सर आपने पहले डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, उसको केल्विन में चेंज किया एंड फिर आंसर आपका केल्विन में आया और वापस से आपने उसे सेल्सियस में चेंज किया, तो क्या हम बिना केल्विन में चेंज किए हुए डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस को लेकर ही सॉल्व करते, तो क्या हमें डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में आंसर नहीं आता? नो, आंसर नहीं आता. यू सॉल्व एंड चेक इट, आंसर गलत आता. सो ऑलवेज जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम डेफिनेटली हम केल्विन स्केल को लेके सॉल्व करेंगे. डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट को लेके सॉल्व नहीं करेंगे. एंड एट द एंड जब हमने फाइनल आंसर को देनी है, तो हमारा आंसर तो केल्विन में आ चुका है. वी वांट it to come in degree Celsius. If we want it to come in degree Celsius, then we will convert this Kelvin scale into degree Celsius wala scale. That we can do. But solution part, we have to definitely do in Kelvin scale if you want to get the correct answer. Next question. The volume of a given mass of a gas at 15 degrees Celsius is 100 centimeter cube. So ये initial temperature दिया हुआ है T1, 15 degree Celsius. We have to obviously convert it to Kelvin scale. तो 273 से मैंने add कर दिया and it is 288 Kelvin. And ये दिया हुआ है volume is 100 centimeter cube. So V1 is 100 centimeter cube. To what temperature should it be heated? Means what is the new temperature? T2. Should it be heated under the same pressure? Pressure constant है. Question ने बोल दिया same pressure. So it should click in your brain immediately. This is Charles' law. Because pressure is constant. So that it occupies a volume of, so new volume is 125 centimeter cube. Again, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. क्या कोई हार्ड चीज है ये? बिल्कुल भी नहीं. So V1 is 100 divided by T1 is 288 is equal to V2 is 125 divided by T2. So T2 will be equal to 125 into 288 divided by 100. And when you solve it, you will get 360 Kelvin. So this is the answer. If you want to convert it to degree Celsius, you should do it because the temperature in the question T1 was given in degree Celsius. So it is always good to convert the answer also in the same unit. So हमें क्या करनी है? 273 इसमें subtract कर देनी है. So it is equal to 360 minus 273, and this will be giving you in degree Celsius, which is 87 degrees Celsius. Moving to the next question. At what centigrade temperature, matlab Celsius temperature, centigrade means Celsius temperature, will the volume of the gas at 0 degrees Celsius triple itself? Means volume will triple. पहले जो भी volume था उसके बाद वो 3 times the volume हो जाएगा. If the pressure remains constant. Now here you see pressure is constant. So ये pressure constant है, so you know that this is Charles' law का question. What centigrade scale? ये term तुम्हें confuse कर सकता है. तुम्हें लग रहा है कि ये तो पूछ रहा है कि centigrade scale बताओ, तो तुम सोचोगे सर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंटीग्रेड में तो दिया ही हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस. लेट अस सॉल्व इट आल्सो इन सेल्सियस वाला स्केल. नो, मैं फिर से इस चीज को तुम लोगों को बहुत सावधान कर रहा हूं कि इवन इफ द क्वेश्चन टेल्स यू टू फाइंड द आंसर इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, यू कैन नॉट solve by putting the values of Celsius in the formula. You have to definitely solve by putting the Kelvin वाला values. So and finally फिर उसको तुम सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन सॉल्व केल्विन में ही करना है. So here let us solve this. क्या at what temperature in centigrade scale will the
वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, लेट अस कॉल दैट V। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, उसको मैं V बुला रहा हूं। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 इसमें ऐड कर दो, इट विल बी 0 प्लस 273 व्हिच इज 273 केल्विन। तो मैंने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। Now the volume will triple itself. That means what is the new volume? New volume is 3 times of V. Initial volume V था, उसका 3 times. Pressure remains constant. तो हमें ये new temperature निकालनी है, वही पूछा है, at what temperature? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. यही काम करनी है. So V upon 273 is equal to 3V upon T2. यहाँ पे V कट जाएगा and you are left with T2 is equal to 3 into 273. So 3 3s are 9, 7 3s are 21, 2 3 7 8, 819 Kelvin. But again, you have to convert it to centigrade scale because they have asked you to get your answer in Celsius. तो 273 इसमें subtract कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये तुम्हारा 7 हो गया कट के, तो 5 हो जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द आंसर. And now we are moving to the next question. To what temperature must a gas at 300 Kelvin be cooled down? तो गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. ये तो केल्विन में ऑलरेडी गिवन है. Now what temperature it must be cooled down? हमें वो टेम्परेचर निकालनी है, T2, in order to reduce its volume to 1/3 of its original volume. तो ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, let us call it V, and new volume is 1/3 of the original volume, means 1/3 of V. That means V upon 3. In other words, V upon 3 is the new volume. Pressure remaining constant, so obviously Charles' law का question. Very simple. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 is V, T1 is 300, V2 is V by 3, है ना, and T2 is to be calculated. तो ये नीचे T2 है, V कट गया, ये हमारा 300 100 हो गया, कट गया 3 से. So T2 is 100 Kelvin. अब यहाँ पे you need not convert it to Celsius because the T1 was given in question in the unit of Kelvin. So you can leave your answer in Kelvin here. If you want to convert it to Celsius, that is fine, no problem. So simple सा question है. Next question. Yes, now we are entering into the last equation or last law, which is actually the combined form of Boyle's law and Charles' law. Now देख लो एक बार, Boyle's law and Charles' law का combined है. Boyle's law कहता है P1 V1 is equal to P2 V2, and तुम्हारा gas equation कहता है V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. दोनों को कंबाइन करो, तो P1 V1 ऊपर में एंड नीचे हमारा T1 आ गया. सो P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. यही ना आएगा, दोनों को कंबाइन करोगे तो यू हैव टू रिमेंबर P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So this is the gas equation. Okay, let us solve questions on this, and I hope you know what are the symbols, what do these symbols mean. P1 is initial pressure, V1 initial volume, T1 is initial temperature, P2 is the new pressure, V2 new volume, T2 is the new temperature. And you have to be very careful. This temperature must be definitely in Kelvin when we will solve the questions. Next. चलो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टर्म हमें जाननी है, STP. तुम देखोगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत जगह ये STP वर्ड का यूज किया गया है. STP stands for standard temperature and pressure. What does STP stand for? Standard temperature and pressure. तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना है. ओके, हमने मतलब साइंटिस्ट्स ने, प्रोफेसर्स ने. ओके, सो साइंटिस्ट्स ने किस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना है? 0 डिग्री सेल्सियस को, इन अदर वर्ड्स 273 केल्विन को. So 273 Kelvin को माना गया है conventionally that this is the standard temperature. So whenever you see the word ST means standard temperature, you have to understand कि ये 273 Kelvin का बात कर रहा है.
ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में वो टेम्परेचर को मेंशन न किया है, they have not told in the question कि it is 273 Kelvin, but they have told it is at standard temperature. So immediately you should understand standard temperature बोले तो 273 Kelvin. Now similarly standard pressure बोले तो कौन सा pressure? It is 760 mm of Hg. अगर mm Hg में है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में हो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो तो 180 m प्रेशर. सो तीन अलग अलग यूनिट्स में भी मैंने स्टैंडर्ड प्रेशर को बोल दिया. जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रेशर तो तुम्हें समझ जाना है, अच्छा 760 mm ऑफ Hg की बात कर रहा है, या सेंटीमीटर Hg में तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg की बात कर रहा है, या 180 m की बात कर रहा है. तो इस तरह से STP का मतलब तुम्हें समझ जाना है. Now why is it important that we take the measurements at a standard temperature and pressure? किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर में हम क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ द गैसेस की? बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन आता है. यू सी दिस इज द क्वेश्चन, why is it necessary to compare the gases at standard temperature and pressure at STP? This is a very important question. Okay, so you should know the reason. क्या रीजन है? The volume of a gas changes remarkably with change in temperature and pressure. थोड़ा सा भी हमने टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दिया तो वॉल्यूम बिल्कुल चेंज हो जाता है गैस का, वो कांस्टेंट नहीं रहता. इसीलिए हम अगर बात करें कि हमने इतना वॉल्यूम ऑफ गैस लिया, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आपने किस टेम्परेचर में किस प्रेशर में लिया. तो हम बोलते हैं, हम अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस लिया, तो ये अंडरस्टूड है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस का मतलब किस टेम्परेचर में लिया? STP में लिया. मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस. और कितना प्रेशर में लिया? तो 760 mm ऑफ Hg. ये इंफॉर्मेशन को हमने, ये इन वैल्यूज को हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज बोला. नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चंस आ गया है. लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. प्रेशर ऑफ गैस एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जब हमने प्रेशर ऑफ अ गैस को डबल्ड कर दिया एंड द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 546 केल्विन, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा? तो इनिशियल वॉल्यूम्स क्या है? STP में लिया ना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज आवर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर. सो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन. क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है 273 केल्विन. कैसे हमने समझ लिया कि इनिशियल टेम्परेचर इज 273 केल्विन? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ द गैस एट STP. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया गया, यानी इनिशियल प्रेशर इज ऑल्सो गिवन. लेट अस टेक इट 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, तुम यहाँ पे ये भी ले सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के यूनिट की कोई बात नहीं की गई है. सो यू कैन टेक एनी यूनिट ऑफ योर चॉइस. तो मैंने यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg वाला यूनिट ले लिया स्टैंडर्ड प्रेशर का. नाउ प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड. अभी हमारा जो प्रेशर है, न्यू प्रेशर है, वो डबल्ड हो गया, मतलब 2 into 760 mm ऑफ Hg बन गया है, ट्वाइस हो गया है, डबल्ड हो गया है. सॉल्व मत करो क्योंकि आगे ये कट जाएगा, बहुत इजीली काटेंगे. सो लेट इट बी 2 into 760 mm ऑफ Hg. अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रेज्ड टू 546 केल्विन. सो द न्यू टेम्परेचर इज 546 केल्विन. तो टेम्परेचर केल्विन में ऑलरेडी है, कोई टेंशन नहीं है. व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट द V2 of the gas. In this question, they have not mentioned anything about the initial volume of the gas. If you read carefully, initial volume of the gas के बारे में तो कोई जिक्र है ही नहीं. So V1 का वैल्यू क्या लेंगे? So let us take it as V. Okay, that means in this question we can give a रेशियो. हम ये रेशियो बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. लेकिन हम एग्जैक्टली फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू हम नहीं बता सकते, बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन द वैल्यू ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम विल बी दिस मेनी टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, या इतना गुना वो बढ़ गया या इतना गुना वो डिक्रीज हो गया, दिस मेनी टाइम्स इट हैज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, वो हम बोल सकते हैं.
because we do not have the exact value of initial volume. Now here you see P1 V1 upon T1 का use करेंगे using gas equation. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. इसको सॉल्व करो. P1 का वैल्यू 760, V1 का V, T1 का 273 is equal to P2 V2 ना. So 2 into P2 is 2 into 760 into V2. V2 हमें नहीं पता, निकालना है, and divided by T2. T2 is 546. Very easily 760 will cancel, and 273 2s are 546. 2 times cut गया, ये 2 और ये 2 cut गया. So what you are left with, V is equal to V2. So here your initial temperature V1 was also V, and finally ये जो V2 आया, that is also equal to V. So what finally can you say कि V2 and V1 both are equal, क्योंकि V2 is also equal to V, V1 was also equal to V. So here there is no change in volume that happened. The volume, the new volume and the original volume both are same. Therefore, the volume, the final volume of the gas is same as the initial volume. इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. The final volume of the gas is same as the initial volume. Okay, next question. A given mass of a gas occupies 572 centimeter cube at 13 degrees Celsius and 725 mm of Hg pressure. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया that occupies 572 centimeter cube, means initial volume is 572 centimeter cube at 13 degrees Celsius. So this is the initial temperature given, 13 degrees Celsius, but we have to convert it to Kelvin by adding 273 to it. So 286 Kelvin and 725 mm pressure, mmHg pressure. So this is your initial pressure of the gas given, 725 mm of Hg. What will be its volume at 24 degrees Celsius? इसका V2 न्यू वॉल्यूम निकालना है. टेम्परेचर दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस न्यू टेम्परेचर, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केल्विन स्केल. सो 297 केल्विन एंड प्रेशर दिया हुआ है न्यू प्रेशर 792 mm of Hg. तो यहाँ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. तीनों का हमें तीन वेरिएबल्स ही हमें यहाँ पे है. सो वी हैव टू यूज द गैस इक्वेशन. यूजिंग गैस इक्वेशन, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. यही गैस इक्वेशन है, इसका अब हम यहाँ यूज करेंगे. P1 का वैल्यू है 725 इंटू V2 का वैल्यू है 572 divided by T1 का वैल्यू है 286 is equal to P2 is 792 into V2 is V2 only, and our T2 is 297 Kelvin. Now the next question. A gas is enclosed in a cylinder under STP conditions. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमने किसी गैस को किसी सिलेंडर में बंद करके रख दिया है. सो व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट मींस 273 केल्विन, and even the pressure is standard pressure, so the initial pressure is 760 mm of Hg. You can also take 76 centimeter of Hg, that is also okay. At what temperature does the volume of the gas becomes 1/6 of the initial volume? So say the initial volume is V, and now
the volume is 1/6 of the initial volume, means the new volume is V upon 6. पहले जितना volume था उसका 1/6 बन गया है. The pressure remaining constant. So you see the pressure is still 760 mm of Hg. Pressure is constant. So when the pressure is constant, we understand that this is definitely the question of Charles law, because pressure is constant. So you can apply the formula for Charles law and solve it. V1 upon T1 by V2 upon T2. Otherwise, you can also do it using V1 P1 by T1 is equal to V2 P2 by T2, because in that way also the P1 and P2 will cancel. So maybe automatically that is, you will actually get Charles law ka equation only. So you see, and here we have to find out the temperature T2. Okay, so let us do it using the gas equation. V1 P1 upon T1 is equal to V2 P2 upon T2. This is what the gas equation is. Now, if you see, P1 is 760 mm Hg, P2 is also 760 mm Hg. So P1 and P2 being same quantities will cancel each other, and we are left with V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 is nothing but the Charles law ka equation. Now, when we put V1 ka value as V, T1 ka value, and here we have to put T1, V1 upon T1, T1 ka value as 273 is equal to V2 ka value is V by 6, and T2 ka value is what we have to calculate. So V will cancel. We will be left with T2 is equal to 273 upon 6. And when we solve this, we will get the value of the new temperature, which is 45.5 Kelvin. So this is our final answer. Now, the next question is 87 centimeter cube of moist nitrogen is measured at 9 degrees Celsius and 659 mm Hg pressure. So we have taken how much amount of nitrogen? 87 centimeter cube of nitrogen. But here you have to be extra careful, very, very careful, that we have taken moist nitrogen. So यहाँ पे you have to be very, very careful, very, very careful. Because we have not taken dry nitrogen. जितने भी laws हमने पढ़ा, gas law, Boyle's law, gas equation, you have seen there was a word dry gas. But here the question says we are taking moist gas. It is moist nitrogen. So we have to find out dry nitrogen ka volume, dry nitrogen ka temperature, dry nitrogen ka pressure, and then only we will be able to solve this question. Now, here, when they say 87 centimeter cube of moist nitrogen, you have to think, what is this 87 centimeter cube? Suppose there is a container. It basically means there is a container. The volume of the container is 87 centimeter cube. इस container में हमने रखा है nitrogen, N2, nitrogen. But this is moist nitrogen. That means there is some amount of water vapor also. H2O is also present along with nitrogen. So nitrogen plus water vapor together are present in this container, and the volume of the container is 87 centimeter cube. And therefore we say that the moist nitrogen, means H2O plus N2, moist nitrogen, has the volume of 87 centimeter cube. Now suppose we remove this water vapor from here. We remove this water vapor from here. Will there be any change in the volume of the nitrogen gas? Now we are left with dry nitrogen, right? तो क्या dry nitrogen का volume decrease हो जाएगा या increase हो जाएगा या same रहेगा? Obviously, if you remove this water vapor, then nitrogen will still fill up the entire space which is available in this container. Gases का तो यही nature होता है कि जितना भी जगह उसको मिल जाए वो पूरे जगह को fill up कर देता है. So earlier water vapor was there. But now when you remove the water vapor, you are left with dry nitrogen. Dry nitrogen will still fill up the entire space available to it, and it will have the same volume, 87 centimeter cube. So हम ये कह सकते हैं कि भले moist nitrogen हो या dry nitrogen हो, volume, initial volume, this is the initial volume that we are talking about. Initial volume of dry nitrogen
will be same as that of moist nitrogen. So it is 87 centimeter cube. Here you have to use your common sense concept and your buddhi to identify that there will be no change in the volume. Now it is measured at 9 degrees Celsius. So this initial volume means, let us symbolize it with V1, because initial volume is V1. So V1 is 87 centimeter cube. Now temperature initial temperature of dry nitrogen is 9 degrees Celsius. So I will add 273 to it to get it in Kelvin. So 9 plus 273, and this will give me in Kelvin scale 82. So 282 Kelvin. This is the initial temperature of dry nitrogen. There will be no change in the temperature of nitrogen even if moisture is removed. So moist nitrogen का भी था temperature 9 degree Celsius, और dry nitrogen का भी same temperature होगा 9 degree Celsius. कोई change उसमें नहीं आएगा. Now initial pressure of the moist nitrogen was 659 mm of Hg. Now here you have to be very careful. If I remove the moisture from this nitrogen, then there will be a fall in the pressure, because ये जो pressure है 659 mm Hg, this pressure is pressure due to nitrogen plus moisture का pressure. So we have to get rid of moisture का pressure. We have to subtract what is the pressure due to water vapor. उस pressure को यहाँ से remove करो, तो बाकी का जो pressure होगा that will be the pressure due to the dry nitrogen. तो क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है the vapor pressure of water at 9 degrees Celsius is 9 mmHg. तो water का vapor pressure means when water is in the vapor state, उसका pressure कितना है 9 mmHg. वो भी किस टेम्परेचर में 9 डिग्री सेल्सियस में. तो हमें 9 डिग्री सेल्सियस का ही चाहिए ना, बिकॉज 9 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर दोनों मिलके प्रेशर था 659. तो सिर्फ वाटर वेपर का प्रेशर है 9 डिग्री सेल्सियस में ही चाहिए हमें 9 mmHg. If I subtract this 9 mmHg from 659 mmHg, I will get only the pressure due to nitrogen. So initial, अच्छा ये हमें T1 मिल गया. Let us symbolize this initial temperature with T1. Okay. Now initial pressure of dry nitrogen. So here what we will do, 659 minus 9 mm of Hg. This we will do, we will be left with 650 mm of Hg. So we have got, this is P1. So we have got V1, T1 and P1. Now the question says, find the volume of dry nitrogen. Obviously volume निकालना है V2, new volume, at STP. So standard temperature, that means T2 is 273 Kelvin, standard temperature, and standard pressure as well. So P2 is 760 mm of Hg. Now we have all the values. We will simply put and we will get the answer. It is simple. So you see how we will solve it using the gas equation. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So here if you put the values, you will get, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, P1 का value is 650, V1 का value 87, T1 का value 282 is equal to P2. P2 is 760 into V2 is to be calculated and T2 is 273, and V2 को सब्जेक्ट बना दूंगा, जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 650 into 87 into ये उधर चला जाएगा 273 divided by 282 into 760. This you will get 72.03, and the unit will be in centimeter cube. So centimeter cube. This is the answer to this question. Isn't it simple? But it was a different type of question, right? Here it was moist gas taken and we calculated in this manner. And here we complete this chapter today. The entire chapter has been covered, and
I wish all the students all the best for their school examinations and happy learning. God bless you, dear students.